Bismillahirrahmanirrahim. This is your second lecture. First one was not very good, I know, and I will start from the beginning. That on the screen you have seen a computer, and you all know what a and we discussed about the difference between data and information. That what is the data and what is information. I want your participation in the class to reply promptly and be alert. Okay, Hamza, I'll show the book and share the PDF as well today, inshallah. Okay? The next one is first one. We discussed about computer, that what the computer is, and then the ancient counting machine. The ancient counting machine, as we all know, it's just a review. You already have done it in class 8 as well, the Backus and Napier bones and Pascal's calculator, Babbage engine. You already have done it, but just this is the review, just a review. Okay. I'm trying my best, Azhan. I don't know what happened, but it was perfect before 5 minutes. Students, can you hear me properly? Okay, now. The the ancient machines. First one is the abacus, which is included in the Dark Age, and then you can see the years here in 1642. Okay, robotics ही आ रही है. Okay, echo I think मेरा ख्याल है इसको हो रहा है. तो सब्जेक्ट रोबोटिक आवाज में आपको सुनने के लिए मिले तो काफी नेचुरल सा लगेगा. मैं कोशिश कर रही हूँ कि आवाज क्लियर हो, लेकिन आई लेट मी इंफॉर्म मैं फिर कुछ करती हूँ उसके लिए. What is the difference between an electronic machine and a mechanical machine or machines, right? देखिए, आप आवाज आ रही है आपको? बताइए मुझे. अब ठीक है. ओके ओके, तो फिर मैं विदाउट हैंड्स फ्री आप कर लेती हूँ, ये वो ज्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है. चलिए, what is the difference between mechanical, manual and electronic? Now you can listen me very properly, answer me quickly in the chat box. That what is the difference between manual machine? What are the manual machines? What are the mechanical machines? And what are the electronic machines? I want your quick feedback. Hurry up. शाबाश, जल्दी से सोचिए. whether it's wrong or right, जो भी आपको सही लगे, आप बेशक गलत बताइए मुझे, but answer me at least.
Computer is an electronic machine, yes. And give the example of any manual machine. Any manual machine. Give me the example of any manual machine or give me the example of any mechanical machine. Very good, Abdul Rahman. Very good. Anybody else? Shiza, where are you? Shiza Faisal. Rahab Iqbal, where are you? ड्रिल्स अच्छा ड्रिल्स सेमल किस तरह चलती हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है वर्किंग कैसे होती है ड्रिल्स की if you are talking about drill machine that is working with electricity so it is an electronic device work with electronic device like works with electricity right manual machine that is working with hand अच्छा ड्रिल अगर हैंड ऑपरेटेड है ऑब्वियसली वो ठीक है मैनुअल है ठीक है जो मशीन लाइक आपने बहुत प्रीवियसली आपने पुराने जमाने की सेविंग मशीन देखी होंगी जो हाथ से चलती थी ठीक है वो मैनुअल होती थी लेकिन जब हम उसमें कोई मोटर फिक्स कर देते थे उसको चलाने के लिए तो वो इलेक्ट्रॉनिक बन जाती थी यानी वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होती थी ठीक है तो जब मशीन्स की इन्वेंशन हुई तो बेसिकली दैट वाज इन मैनुअल स्टार्टिंग फ्रॉम मैनुअल मशीन्स में मैनुअल में क्या था बेगस था हमारे पास फिर हमारे पास मैकेनिकल मशीन जिसमें डिफरेंट मैकेनिकल कौन सी होती है जिसमें डिफरेंट टुकड़े जोड़कर डिफरेंट आइटम्स को जोड़कर हम एक चीज बनाते हैं दैट इज अ मैकेनिकल काउंटिंग मशीन ठीक है एस्केलाइन जो था फर्स्ट अगर डार्क एज की बात करेंगे सारे जितनी भी आपकी डिवाइसेस हैं ये सब डार्क एज की है ठीक है और सबके साथ टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि किस टाइम पीरियड ये में ये डेवलप हुई मैकेनिकल काउंटिंग मशीन थी Pascaline is a mechanical calculating device invented by the French philosopher and mathematician Blaise Pascal in 1642. Here the year is given that that it was developed in 1642. इसके बाद मैकेनिकल काउंटिंग मशीन में लेबनिज आ जाता है वाज इन्वेंटेड बाय द फेमस मैथमेटिशियन लेबनिज इन 1673 अब पहले हमारे पास 42 था अब 73 ठीक है और ये मैकेनिकल काउंटिंग मशीन क्या कर सकती थी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ठीक है उससे पहले कैलकुलेशंस नहीं कर सकती थी बल्कि सिर्फ प्लस माइनस ही कर पाती थी लेकिन ये मशीन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के ऑपरेशंस परफॉर्म करने लगी थी आफ्टर दैट punch card was the start of Herman Hollerith machine, right? Punch card, counting machine में important difference है ये सबसे अहम इन्वेंशन है बेबेज डिफरेंस इंजन फॉर कैलकुलेटिंग मशीन्स made by Charles Babbage to produce tables of numbers that would be used by ship's navigator. ये सबसे अहम इम्पोर्टेंट जो इसके डिवाइस हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर एरा का स्टार्ट था वो कंप्यूटर एरा का स्टार्ट किससे था बेबेज डिफरेंस इंजन से ठीक है बेबेज डिफरेंस इंजन एंड बेबेज एनालिटिकल इंजन Because I tried everything, but I don't know what the problem is, whether it's at your side or my side. But now you can tell me if the voice there or not. Only Iman Sohail is asking for the voice.
Okay. The invention of a vacuum tube, that is the first. Okay. Okay, wait. Okay now. Is it okay now? Okay. So I was talking about the Babbage engine, that difference engine and analytical engine was the start of the mechanical. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल काउंटिंग मशीन। मैं आपको दोबारा क्योंकि थोड़ा सा हमारे लेक्चर में बीच में डिस्टर्बेंस रही, तो मैं थोड़ा सा इसको शुरू से दोबारा लेके चलूंगी कि हमारे पास स्टार्ट से क्या था। वो जिस कंप्यूटर ये हमने पिछले लेक्चर में भी कर लिया था, और वेरी बिगनिंग एंशियंट काउंटिंग मशीन में हमने बैकस किया, जो डार्क एज में आता है। बैकस वॉज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, मैनुअली कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। रोमन नंबर्स और अरबिक न्यूमरल्स इसमें यूज होते थे। चाइना में डेवलप हुआ, इट्स अ मैनुअल डिवाइस। आफ्टर मैनुअल डिवाइसेस मैकेनिकल डिवाइसेस वर इन्वेंटेड। मैकेनिकल वो होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं जाती, बट वो डिफरेंट चीज़ों को मिला के कंबाइन करके एक मशीन बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं कि अगर हम यस हुजैफा, स्पीकर, wait, हुजैफा, yes हुजैफा, you can ask me. For you people, I'm continuously roaming around the school to see account. Hope everything is fine now. I cannot do much better than this. Hopefully आप लोगों को अब आवाज आ रही हो। I have changed the background as well, everything, लेकिन अब आवाज आनी चाहिए। Thank God. शुरू करते हैं फाइनली।
वो मशीन्स होती हैं जो डिफरेंट पार्ट्स को जोड़कर एक मशीन बनाई जाती है, वो कहलाती है मैकेनिकल मशीन। और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स, मैनुअल मशीन्स एंड मैकेनिकल मशीन्स। अब जब शुरू हुई थी कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग या कंप्यूटर का आइडिया, ऑब्वियसली इट वाज स्टार्टेड बाय बेबल इंजन। बेबल इंजन जब इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद कंप्यूटर की इन्वेंशन, यू कैन से दैट इट स्टार्ट्स। ठीक है, अगेन मैं आपको इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगी। इन द ईयर 1832, ठीक है, 1832 में ये बना था और ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसकी वजह से कंप्यूटर का आइडिया प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, दिस डिवाइस हैड मैकेनिकल प्रॉब्लम सिमिलर टू दोज दैट पास्कल्स एंड लेबनिज। पास्कल और लेबनिज की तरह इसमें भी डेफिनेटली प्रॉब्लम थी। जब हम बैटरी ऑपरेटेड है ना अब्दुल रहमान, तो ऑब्वियसली फिर वो बैटरी ऑपरेटेड तो इलेक्ट्रिसिटी आप समझ लीजिए। ठीक है, जब 1832 में हुआ उसके बाद एनालिटिकल इंजन का इंट्रोडक्शन हुआ। एनालिटिकल इंजन के बाद फिर इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब हुआ। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन और बेबल डिफरेंस इंजन वाज द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर एरा। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब हमने पहले भी पढ़ा था, एज वी ऑलरेडी डन इट क्लास 8, कि वैक्यूम ट्यूब वाज द मेजर इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इनिशियली डिस्कवर्ड बाय थॉमस एडिसन। आपने पता होगा बल्ब के इन्वेंटर जो है थॉमस एडिसन। द वैक्यूम ट्यूब फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द एंटायर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एंड द एरा वाज 1883। ठीक है, 1883 में vacuum tubes were later used as electron valves in the 20th century to build the first electronic computer। अब ये इतना इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप किसी चीज को इन्वेंट करना, जब आपके पास कोई आइडिया होता है, उस आइडिया को प्रमोट करना, उसको मॉडिफाई करना, उसको चेंज करना, उसमें अमेंडमेंट्स करना, अमेंडमेंट्स मीन्स चेंजेस करना, उन चेंजेस को करते करते उसको इतना बेहतर बना देना कि वो मार्केट में यूज के काबिल हो जाए। ठीक है, जब ये वैक्यूम ट्यूब इंट्रोड्यूस हुई होगी, नोबडी थॉट अबाउट द कंप्यूटर, किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया होगा। जब राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सोचा होगा तो किसी के जहन में एरोप्लेन का ख्याल नहीं आया होगा। हर आइडिया जब शुरू होता है तो वो सिली लगता है, बेवकूफी लगती है लोगों को, लेकिन जब आपकी लगन होती है और आप उस पर काम करना शुरू करते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होने लगता है। ठीक है, जब जब भी कोई नई चीज होती है, जैसे हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कंप्यूटर पे बैठकर या अपने मोबाइल पे लैपटॉप पे हम दुनिया भर में कहीं भी किसी से बात कर लेंगे। क्या ये पॉसिबल था? ऑब्वियसली नॉट, नहीं था ये पॉसिबल। लेकिन जो काम करने वाले थे उन्होंने उसमें मजीद मॉडिफिकेशंस करते 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 टेक्नोलॉजी को यहाँ तक पहुंचा दिया। और अब मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि 20 इयर्स के बाद मजीद इसमें कितनी मॉडिफिकेशन हो चुकी होगी कि जो हम अभी अज्यूम भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जिस वक्त ये वैक्यूम ट्यूब डेवलप हुई उस वक्त किसी ने कंप्यूटर का नहीं सोचा होगा कि कंप्यूटर में ये यूज होगी, तो ये किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफिकेशन के साथ कंप्यूटर कहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है ना, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन में ये एक डिवाइस थी, हर्मन हॉलरेट। ठीक है, ये इन्वेंटर का नाम है। कैलकुलेटिंग डिवाइस मशीन इन्होंने इंट्रोड्यूस की, और ये इन्होंने किस लिए इंट्रोड्यूस की? सेंसस के लिए। सेंसस आप लोगों को पता है व्हाट इज सेंसस? सेंसस होते हैं जो पॉपुलेशन काउंट होता है ना, जैसे इलेक्शन से पहले हमारे पास मर्दमशुमारी जिसे हम उर्दू में कहते हैं, कि लोगों के एक जो एक पूरी पॉपुलेशन काउंट होती है कि इस मुल्क में कितनी पॉपुलेशन है, उसके लिए इन्होंने ये यूज किया था हर्मन हॉलरेट का इंजन। ठीक है, electrical counting machine. Hallrich machine was immensely successful. The general count of the population then 63 million took only 6 weeks to calculate. अच्छा, अब ये हमें तो बहुत अभी ना आसान सी बात लग रही है कि 63 मिलियन को 6 weeks we can assume कि बहुत ज्यादा है, हमें तो इससे पहले काम कर लेना चाहिए था। But when we consider about the dark age or modern age, middle age,
इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस वक्त जो कंप्यूटर थे वो पर मिनट या पर आवर क्या कैलकुलेशन करते थे, वो आगे वाली स्लाइड्स में आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि वो कितना टाइम टेकिंग था। तो उस वक्त ये हॉलरेट मशीन वॉज वेरी सक्सेसफुल कि उसने 6 वीक्स में 63 मिलियन पॉपुलेशन काउंट कर ली। ठीक है, 1888, 1888, ठीक है। Based on the success of his invention, Herman Hollerith and some friends formed a company that sold his invention all over the world. यानी ये कमर्शियल यूज के लिए मशीन इनकी इंट्रोड्यूस हो गई। कमर्शियल यूज मतलब जब कोई चीज मार्केट में आ जाती है, वो इजीली अवेलेबल हो जाती है सबके लिए, दैट इज द कमर्शियल यूज। ठीक है, द कंपनी इवेंचुअली बिकेम नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट आईबीएम, जिसे हम आज आईबीएम के नाम से जानते हैं, वो कब इंट्रोड्यूस हुई? 1888 में। ठीक है, और आईबीएम को हम कहते हैं कि द फाउंडर्स ऑफ कंप्यूटर, यानी जिन्होंने कंप्यूटर की बिगिनिंग स्टार्ट की। अब ये देख लीजिए कि हॉलरेट मशीन जो है वो कितनी 6 वीक में 63 मिलियन पॉपुलेशन काउंट कर रही है, और वो सक्सेसफुल जो उसका सक्सेसफुल जो रही है, उसके बाद ये एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से एक कंपनी अराउंड द वर्ल्ड आ गई जिसने उसको लॉन्च किया कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, अच्छा, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछिए। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिकल काउंटिंग मशीन में मैंने भी आपसे पहले बताया था कि दो इंजन थे, जो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन। दिस इज द पिक्चर ऑफ एनालिटिकल इंजन। इट वाज कंप्लीटेड इन 1910 by his son, because Charles Babbage was died before that, and that's why it was completed by his son. You sponge cast, but it was not very successful. ठीक है, you sponge cast to store numbers. The design was no more successful than its predecessors. यानी उससे पहले जो मशीनें बनी थी उसके मुकाबले में ये इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मशीन। अब यहाँ पर क्या है, पहले हमारे पास क्या था? मैकेनिकल। मैंने आपको बार बार शुरू में 3 चीजें बताई, मैनुअल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पर क्या वर्ड यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल काउंटिंग मशीन। जब हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो मार्क वन वाज बिल्ट बाय टीम फ्रॉम आईबीएम, आईबीएम अगेन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, and Harvard University. Mark I used mechanical telephone switches to store information. It accepted data on punch cards, processed it, and then output the new data. ये देखिए 1943. The time period was 1943. It was 51 feet long and weighed over 5 tons. 5 ton इसका weight था, और 51 feet ये आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा एरिया ये कवर करता था। और ये आपका सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग इलेक्ट्रिक मशीन। जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम नाम किसका लेते हैं? मार्क वन का। Mark one. After that, Mark one electronic counting machines. The second one is the ENIAC, was the first US built all electronic computer built to perform ballistic calculation. Ballistic वो जो forces वगैरह में use होती हैं उसको कहते हैं। And ENIAC जो था वो first electronic computer था। It was 1,000 times faster than Mark one. ठीक है, but it drew a lot of power that dimmed the lights of Philadelphia when it was switched on due to the use of vacuum tube. Mark one का परफॉर्मेंस क्या थी? 5 एडिशन पर सेकेंड। एनए की परफॉर्मेंस क्या थी? 5,000 एडिशन पर सेकेंड।
एनिक पर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टॉल थी और वैक्यूम ट्यूब्स इंस्टॉल थी। आपने देखा वो एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। ठीक है, अभी भी अगर मैं आप लोगों से आज के टाइम में भी बात करूं तो हम ये सोचते हैं कि जहां बल्ब लगा होता है वहां पर ट्यूब लाइट या एलईडी लगा दें। क्यों? क्योंकि वो पावर कंजम्पशन कम होती है एज कम्पेयर टू बल्ब। ठीक है, तो जब 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे, दैट इज टाइप ऑफ अ बल्ब स्ट्रक्चर, राइट? इट drew a lot of power. A lot of power मतलब a lot of electricity that dimmed the light of Philadelphia. You know the name of the city Philadelphia when it was switched on. जब ये कंप्यूटर स्विच ऑन होता था तो इतनी पावर लेता था कि पूरे फिलाडेल्फिया की लाइट्स डिम हो जाती थी। ठीक है, इस वजह से ये फ्लॉप ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन का तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को सेटल होने में, लेकिन ये इसका सबसे ड्रॉबैक जो था वो ये था कि ये सबसे ज्यादा पावर कंज्यूमिंग डिवाइस थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, शॉर्ट लाइफ ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स बर्स्ट हो जाती थी। ठीक है, इट रन्स अ सिंगल प्रोग्राम व्हिच मींस रीवायरिंग बाय अ ग्रुप ऑफ टेक्नीशियन इज नीडेड टू चेंज द प्रोग्राम। सिंगल प्रोग्राम एक वक्त में चल सकता था और सॉल्यूशन इसका क्या था? द सेम ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स वर्क ऑन अनदर वर्जन ऑफ ENIAC that can store programs on punch cards that are much easier to manage, and they came up with that. After ENIAC, ADVEC was introduced. ठीक है, आफ्टर ENIAC ADVEC was introduced और उसका जो रिसर्चर्स जो ENIAC पर काम कर रहे थे उन्होंने ही ADVEC पे भी काम स्टार्ट किया। और ADVEC का एब्रिविएशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिवाइस आ चुकी है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर यानी यूनिवैक इन द ईयर 1951। 40 of these computers were sold to businesses. General Electric was the first computer to acquire a UNIVAC. General Electric is the name of a company. वो पहली कंपनी थी जिसने UNIVAC परचेज किया था। The first UNIVACs were used in the US Army, Air Force, Navy, and Atomic Energy Commission. Students, I want you to ask some question, please. Next. Abdurrahman, all of you, I'm asking to all of you that I want you to ask some question. If you have any query, please ask me. ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये इस वक्त अब जो मेरे पास नेक्स्ट जो स्लाइड्स हैं वो थोड़ी सी टाइम वैक्यूम ट्यूब के बारे में क्या बता दूं अब्दुल रहमान, तो क्वेश्चन क्लियर कीजिए थोड़ा सा। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं इसमें क्योंकि आई हैव 2 मिनट्स लेफ्ट तो मैं इसे मजीद आगे लेके नहीं चलूंगी। आई जस्ट वांट टू सॉल्व एनी क्वेरी इफ यू हैव और एनी क्वेश्चन इफ यू हैव। अब्दुल रहमान, मेक योर क्वेश्चन क्लियर दैट व्हाट शुड आई आस्क अबाउट वैक्यूम ट्यूब, the structure, the use. The structure of a vacuum tube was like of a bulb, right? And the use of that is on the first electronic computer. And I told you before that there was 18,000 vacuum tubes on that, which consume a lot of electricity, and that was the complete drawback of that computer.
अच्छा, एक दफा फिर रिव्यू करेंगे. द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज मार्क 1, देन एनियन इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, देन एडविक, एनियन के बाद एडविक, फिर यूनिवेक. ये सारे आपको सीक्वेंस में पता होने चाहिए कि कौन से कंप्यूटर के बाद कौन सा कंप्यूटर आया. और सेंसस डेटा कैलकुलेट करने के लिए हर्मन हालर की मशीन यूज हुई, जो 63 मिलियन पीपल की पॉपुलेशन को, जिसने 6 वीक्स में कंप्लीट किया था सेंसस डेटा के लिए. ठीक है. ये सारे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं which you need to note down for your memory because it can be included in your objectives or MCQs. Okay, I share the PDF of the book today, right now, or you have to purchase the copies for the written work. And there are two journals, Journal 1 and Journal 2, and one copy for test. Hopefully meet inshallah on Monday for group A. If the physical classes are on, we will get the group and the schedule soon inshallah. And I wish कि स्कूल खुल जाए और आप लोग स्कूल आ सकें इंशाल्लाह. If there is any query, please ask me. Yes, Maida, no books are not available. That's why I'm sharing the PDF of it. Okay, don't worry.